we are going to start with the chapter called human reproduction. Okay. Now in case of human reproduction, in case of reproduction, as you know, reproduction is of two types. Reproduction कितने तरह का होता है? दो तरह का. Reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is asexual reproduction? It is uniparental. What is the meaning of uniparental? Only one parent is involved. That is why it is called uniparental. Now in case of asexual reproduction, there is no gamete formation. Gamete का formation नहीं होता है. ना gamete का formation होगा, ना ही fertilization होगा. No gamete formation, so no fertilization. What about in case of sexual reproduction? It is biparental. What is the meaning of biparental? Two parents are involved. It is biparental. What is the meaning of biparental? Two parents are involved. Then what are the steps or sequence of sexual reproduction? सबसे पहले क्या होता है? Gamete formation. सबसे पहले क्या होता है? Gamete formation. Then after gamete formation क्या होता है? After gamete formation क्या होता है? It is insemination. What is insemination? Transfer of sperms into the body of female. That is called insemination. Then occurs fertilization. Fertilization के बाद this formation of what? Zygote. Zygote बनता है. Zygote के बाद zygote divide and de-divide to give what? Embryo. Then embryo का implantation. What is implantation? Attachment of embryo in the wall of uterus is called implantation. And finally parturition. So these are the steps involved in sexual reproduction. Okay. Now let us study in detail. First we will start with male reproductive system. Okay. Male reproductive system consists of what? Male reproductive system. It consists of gonads. What is gonads? Primary sex organ. Gonads को हम लोग क्या बोलते हैं? Primary sex organ. Male reproductive system consists what? It consists of what? It consists of सबसे पहले gonads. What is the other name of gonads? Primary sex organ. Primary sex organ. Example of this in case of male is testes, whereas in case of female it is ovary. Okay, so what is the example of this primary sex organ? Example is testes. Example is testes. Now काम क्या है? What is the role of testes? Testes के दो रोल है. What is the role of testes? First one is to produce sperms. एक इसका मेजर रोल क्या है? To produce what? To produce sperms. What is the second role? To produce a hormone. उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? Androgen. And example of androgen is testosterone. To produce हार्मोन, उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन.
An example of androgen is testosterone. Now what else it consists of? Secondary sex organ. What is secondary sex organ? देखो, टेस्टिस क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करता है. जैसे फैक्ट्री में माल बनता है, देन फैक्ट्री में माल जो बनता है उसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है. सेम वैसे ही स्पर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, देन उसको आगे ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. यहाँ आप लोग इनको डक्ट्स बोल सकते हो. दिस इंक्लूड्स व्हाट? डक्ट सिस्टम. यहाँ पे आपके स्पर्म्स बन गए और यहाँ पे स्पर्म्स जो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. भाई क्या इसका एग्जांपल है? यस, टेस्टिस के अंदर रिप्रेजेंट होता है रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया. देन टेस्टिस के बाद जब हम लोग आते हैं एपिडाइमिस, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, देन वास डिफरेंस, देन कम्स द इजैकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली यूरेथ्रा. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? हम लोग आगे पढ़ेंगे. विल सी वन बाय वन. ओके, विल सी वन बाय वन. सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले व्हाट इज अ पार्ट? इट इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस. It is present inside the testes. Then next comes what? Vasa efferentia. Vasa efferentia. ये दोनों पार्ट टेस्टिस के अंदर होते हैं. देन जब हम लोग टेस्टिस के बाहर आएंगे तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? हाईली कॉइलिस एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन इट ओपन्स इनटू व्हाट? यूरेथ्रा. एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया भी बोल सकते हो. इजैकुलेटरी डक्ट एंड फाइनली यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा भाई किस में ओपन होता है? इट ओपन्स इनटू एक्सटर्नल जेनिटलिया कॉल्ड पेनिस. ओके, देन व्हिच इज द थर्ड थिंग? accessory glands. Accessory glands. Then in case of male reproductive system there are 3 accessory glands. First one is seminal vesicle. Second one is prostate gland. And the third one is Cowper's gland. Cowper's gland. Yeah, it is also called bulbourethral gland. ठीक है. Now let us first start with gonads. Gonads or primary sex organ. What is the example of this? Testes. Let us first study something about testes. Now, testes. If I write testes, es means they are in paired. दो होते हैं. If I write I, it is singular. ठीक है. So testes आपको पता है, these are paired होते हैं. Now, what is the location? कहाँ पे situated है? Testes are situated, यहाँ located outside the abdominal cavity. यहाँ outside the abdomen. Testes are situated outside the abdomen. Now these testes, how these are protected? These are protected in a structure. These are protected or these are kept in a pouch-like structure called scrotum. Testes, these are kept or these are present in a pouch-like structure called scrotum. Testes are present in a pouch-like structure जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
स्क्रोटम। नाउ नीट में इसका रोल पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम। दो रोल है इसके। फर्स्ट रोल क्या है, पहले तो ये प्रोटेक्शन देता है किसको, टेस्टिस को। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, इट गिव्स प्रोटेक्शन। व्हाट इज अनदर रोल, it acts as a thermoregulator. What is the meaning of thermoregulator? It maintains temperature. So what is another role, it acts as a thermoregulator. It acts as a thermoregulator. Now as you know, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है that is 37, but for sperm production हम लोग को 2.5 डिग्री लेस चाहिए। सो वो कौन मेंटेन करता है, स्क्रोटम। ओके, सो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए कितना टेम्परेचर कम चाहिए, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो वो कौन मेंटेन करता है, स्क्रोटम। ओके, नाउ लेट अस स्टडी विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। TS of testis. In each testis there is a presence of lobules. हर एक टेस्टिस में lobules present होते हैं। Then what is the number of these lobules? 215 number. हर एक टेस्टिस में क्या होते हैं, there is presence of what? Lobules होते हैं। What is the number of these lobules? Approximately 215 number. Then inside these testes होता है, testes के अंदर lobules. Lobules के अंदर क्या होता है, functional part of testes. What is functional part of testes? देखो आप लोग को पता है ब्रेन में काम करने वाला पार्ट कौन सा है, न्यूरॉन है। किडनी में काम करने वाला पार्ट कौन सा है, नेफ्रॉन है। वैसे ही टेस्टिस में काम करने वाला पार्ट कौन सा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो व्हाट इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, भाई किसको बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फंक्शनल पार्ट ऑफ टेस्टिस, काम करने वाला पार्ट, फंक्शनल पार्ट ऑफ टेस्टिस, काम करने वाला पार्ट, उसको ही हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, क्योंकि यही है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है व्हाट इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, यही है जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ओके, सो टीएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस इन ईच टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोब्यूल्स, 215 नंबर। इनसाइड ईच लोब्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। नाउ अभी आपको उसका रोल पड़ता है क्या, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, स्पर्म्स। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस, 1 2 3, किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा। नाउ ऑल द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दे कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑल दिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दे कन्वर्ट टू फॉर्म व्हाट, they converge to form network of ducts, बहुत सारे ducts, they converge to form network of ducts called rete testes, they converge to form network of ducts जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, these are called what, most important, these are called rete testes, these are called rete testes. Seminiferous tubule converge to form rete testes.
फ्रॉम रेटे टेस्टिस अराइजेस 15 to 20 नैरोडक्स, यहाँ से नैरोडक्स अराइज होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज नैरोडक्स आर कॉल्ड वासा एफरेंशिया. फ्रॉम टेस्टिस अराइजेस 15 to 20, फ्रॉम रेटे टेस्टिस अराइजेस 15 to 20 नैरोडक्स. इस डक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया. इट इज कॉल्ड वासा एफरेंशिया. So rete testis from rete testis arises 15 to 20 narrow ducts called vasa efferentia. Now नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सेमनीफरस ट्यूब्यूल द स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. हाउ स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेमनीफरस ट्यूब्यूल टू वासा एफरेंशिया. किसके थ्रू होता है? सो इट इज किसके थ्रू? इट इज थ्रू रेटे टेस्टिस. नीट में बहुत बार पूछा गया है कि हाउ स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेमनीफरस ट्यूब्यूल टू वासा डिफरेंशिया. सो इट इज किसके थ्रू? इट इज थ्रू रेटे टेस्टिस. ओके, देन ये वासा एफरेंशिया थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओके, रेटे टेस्टिस मैंने एक एग्जांपल बताया था. देन वासा एफरेंशिया जो कि टेस्टिस के अंदर रहते हैं. टेस्टिस के बाहर वाला पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर. दिस इज योर हाईली कॉइल स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस. दिस इज योर हाईली कॉइल स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस. देन एपिडाइमिस से क्या अराइज होता है? दिस इज वास डिफरेंस. ओके, ये जो एपिडाइमिस इट इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर. अप टू वासा एफरेंशिया हम लोग टेस्टिस के अंदर का पार्ट है. देन दिस ये जो हाईली कॉइल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एपिडी वेट. ओके, एपिडिडाइमिस. एक्चुअली जो एपिडिडाइमिस है इट इज हाईली कॉइल 6 मीटर इन लेंथ और इसके 3 पार्ट्स है. द हेड इज कॉल्ड कैपुट. हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड इज कॉल्ड कैपुट एपिडिडाइमिस. मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस. मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड को हम लोग बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस. मिडिल पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडिडाइमिस. एंड द टेल पार्ट इज कॉल्ड, this is your tail part. It is called chorda epididymis. chorda मतलब क्या होता है? tail. Okay, so this was something about the TS of testes. याद रखो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है. देन स्पर्म्स को आगे कौन लेके जाता है? डक्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दिस? रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया. देन बाहर कौन सा है? एपिडिडाइमिस है. देन दिस एपिडाइमिस किस में ओपन होता है? थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे डायग्राम निकाला था. ओके, इट ओपन्स इनटू व्हाट? वास डिफरेंस. सो वी कैन से वास डिफरेंस कहाँ से अराइज होता है? अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस. या लास्ट पार्ट इट इज अराइजेस फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमिस. ओके, लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. आई होप आपको इतना समझा रहेगा. सो व्हाट इज द रोल ऑफ गोनेड्स? गोनेड्स का काम होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना. मेल गोनेड कौन सा है? टेस्टिस. फीमेल गोनेड कौन सा है? ओवरी. चलो, लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. Structure of seminiferous tubule. तो इधर पहले आज मैंने बताया था गोनेड्स के 2 रोल है. एक है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स जो हमने देख लिया. देन दूसरा है हार्मोन्स. लेट अस सी.
चलो दोनों इसके थ्रू समझते हैं। दिस इज योर सेमनीफरस ट्यूब्यूल। सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, इसके अंदर दो तरह के सेल्स है। दिस सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय cuboidal cells. This seminiferous tubule is lined by cuboidal cells, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स या प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो पहला तरह का सेल कौन सा है? सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। विच इज द फर्स्ट वन? दिस सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल, जिसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड क्या? जर्म सेल्स बुलाते हैं। या अगर आपको ये टर्म नहीं यूज करना है, यू कैन यूज द वर्ड प्राइमोडियल जर्म सेल, वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ इनका काम है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। जर्म सेल्स का काम क्या है? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, नाउ बिटवीन द जर्म सेल्स के बीच में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। These are columnar cells. Columnar मतलब लंबे लंबे कॉलम की तरह। These are columnar cells. इनको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं सर्टोली सेल्स। तो दूसरा सेल कौन सा होता है सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर? सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल्स के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? इसके तीन रोल है। मेन एक रोल क्या है? देखो, ये जर्म सेल्स थे। व्हाट इज द रोल ऑफ जर्म सेल्स? इनका काम है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना। ये जर्म सेल्स का काम क्या है? दे प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म्स। देन इनको नरिशमेंट, दीज आर योर सर्टोली सेल्स। ये आपके कौन से सेल्स है? सर्टोली सेल्स। देन ये इसको क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते। दे प्रोवाइड नरिशमेंट व्हाट? स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। So what is the main role of this? They provide nourishment to sperms. दूसरा रोल क्या है? ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, that is called inhibin। और एक प्रोटीन भी बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं ABP। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ABP। ओके, सो ये आपका एक सेमनीफरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा। नो बिटवीन द सेमनीफरस ट्यूब्यूल देयर इज अ स्पेस। यहाँ पे जो स्पेस इतना दिखता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड क्या? बिटवीन द सेमनीफरस ट्यूब्यूल यहाँ पे स्पेस होता है। इस स्पेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? What this space is called? This space is called interstitial space. इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? Interstitial space. So what I said, between the seminiferous tubule there is a space between the सेमनीफरस ट्यूब्यूल क्या रहता है? स्पेस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। देन ये जो स्पेस है इसमें स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। या और एक नाम से हम लोग इनको बुलाते हैं, लेडिक सेल्स। भाई काम क्या है लेडिक सेल्स का? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लेडिक सेल्स? ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंड्रोजन? शुरू में मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन। ओके, व्हाट इज लेडिक सेल्स का काम क्या है? दे रिलीज हार्मोन। उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एग्जाम्पल कौन सा है भाई एंड्रोजन का? एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन।
रिमेंबर जहाँ पे भी वर्ड एंड्रो आएगा, एंड्रो मतलब होता है मेल। देखो जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो गोनेड्स के दो ही काम है, एक तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो भाई स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस के अंदर, कौन सा पार्ट, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स। ओके, देन सेटोली सेल्स क्या करते हैं, नरिशमेंट। ओके, देन इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो सेल्स होते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टेस्टिस वी है कंप्लीटेड। नाउ यहाँ गोनेड्स हम लोगों ने मेल गोनेड कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले क्या है, टू स्टडी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। भाई इनका काम क्या होता है, थोड़ी देर पहले आज मैंने ट्रांसफर ऑफ गैमीट इनके। ओके, मेन है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, देन मैच्योरेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, लेट अस सी पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है। फर्स्ट वन इज ये जो टेस्टिस था, टेस्टिस के बाहर ऐसे हाईली कॉइल स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सबसे पहले कौन सा है, एपिडिडाइमिस। देन थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसके तीन पार्ट है। एक तो इसका मैंने बताया ये क्या होता है, दिस इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर। व्हाट इज हाईली कॉइल होता है, 6 मीटर इन लेंथ होता है और इसके तीन पार्ट्स हैं। लेट अस सी व्हाट इज एपिडिडाइमिस। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, 6 मीटर लेंथ होता है। ओके, एंड 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स से थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हेड पार्ट इज कॉल्ड क्या, हेड इज कॉल्ड क्या, कैपुट एपिडिडाइमिस। हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस। देन मिडिल पार्ट इज कॉल्ड क्या, कॉर्पस बोलते हैं। भाई मिडिल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस। कॉर्पस मतलब बॉडी होता है। ओके, एंड द टेल पार्ट इज कॉल्ड क्या, टेल पार्ट इज कॉल्ड क्या, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाडा एपिडिडाइमिस। इट इज कॉल्ड क्वाडा एपिडिडाइमिस। जहाँ कॉडा मतलब क्या होता है, कॉडा मतलब होता है टेल होता है। ठीक है, नाउ भाई व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, इनका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, हेड पार्ट का, मिडिल पार्ट का रोल क्या है और टेल पार्ट का। सो ट्रिक याद रखो, एमएमएस। व्हाट इज द ट्रिक, एमएमएस। भाई किस में हेल्प करता है, एम के लिए क्या है, मैच्योरेशन में। हेड पार्ट किस में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में। देन और किस में, मोटिलिटी में। द फंक्शन ऑफ मिडिल पार्ट दैट इज कॉर्पस इज नॉट नोन। इसका फंक्शन पता अभी तक नहीं चला है। ओके, आई सेड एमएमएस। फर्स्ट एम इज फॉर मैच्योरेशन, सेकंड एम इज फॉर मोटिलिटी, एंड टेल पार्ट by role S is for storage of sperms temporarily, storage of sperms temporarily. Okay, so this was your secondary sex organ, epididymis. Then इस epididymis से क्या arise होता है, next part आपका next duct, vas deferens। क्या arise होता है, vas deferens। Okay,